حکومت اور فوج نے مردم شماری کے لیے انتظامات کر لیے۔ فورسز کے 2 لاکھ سے زائد اور سویلین انتظامیہ کے 1 لاکھ سے زائد اہلکار حصہ لیں گے۔ پہلا مرحلہ 15 مارچ سے 15 اپریل کو مکمل ہوگا۔ پاک فوج کا نمائندہ ہر گھر کے دروازے پر جائے گا۔ مردم شماری پر غلط معلومات دینے پر 6 ماہ قید اور 50,000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ مرد اور عورتوں کے ساتھ خارجہ سرا بھی شمار ہوں گے۔ دوہری شہریت والوں، سفارتکاروں، مہاجرین، معذور افراد اور نقل مکانی کرنے والوں غرض سب کا ڈیٹا مرتب ہوگا۔ وزیر مملکت اور DGISPR کی بریفنگ۔ شناختی کارڈ کی شرط پر نرمی برتی جائے۔ شناختی کارڈ نہ ہونے کی صورت میں دیگر شواہد قابل قبول سمجھے جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو خط۔ کراچی میں مردم شماری کے باعث میٹرک کے امتحانات کی نئی تاریخوں کا باضابطہ اعلان۔ 28 مارچ سے 14 اپریل تک جنرل گروپ، 15 اپریل سے 3 مئی تک سائنس کے امتحانات ہوں گے۔ تحریک انصاف نے صرف دھرنا سیاست کو ترجیح دی۔ خیبر پختونخوا میں مینڈیٹ ملا لیکن کچھ نہیں کیا۔ کوشش کریں گے انتخابات میں صوبے میں سیاسی اتحاد بنائیں۔ گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جھگڑا کی پروگرام روبرو میں گفتگو۔ لاہور کا سیاسی پارا بھی ہائی ہو گیا۔ PTI کنونشن بد نظری کا شکار۔ مالک ہال بند کر کے غائب۔ کنونشن سڑک پر کرنا پڑا۔ شادی ہال کا مالک زین قادری کے غنڈوں کے دھمکانے پر فرار ہوا ہے، رہنماؤں کا الزام۔ جبکہ پنجاب حکومت نے معاملہ PTI کا اندرونی جھگڑا قرار دے دیا۔ تحریک انصاف اور نون لیگ کی مہاذرائی بھی عروج پر پہنچ گئی۔ عمران خان خود میدان میں آ گئے۔ جاوید لطیف کی اسمبلی رکنیت کی معطلی کے منتظر۔ لیکن اگر آپ نے اس کے خلاف ایکشن نہ لیا، اس کا مطلب آپ خود پیچھے ہیں اس کے۔ آئندہ انتخابات کے بعد عمران خان بھی ریلو کٹا ہو جائیں گے۔ نئی ملک بھی ریلو کٹا اور چوہدری سرور پھٹیچر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا جواب۔ نیشنل ایکشن پلان اور رد الفساد کو بنیاد بنا کر سیاسی سرگرمیوں پر پابندی کا مطلب آمریت کو فروغ دینا ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے میں اصل رکاوٹ حکومتی پالیسیاں ہیں۔ سراج الحق کا تقریب سے خطاب۔ فوجی عدالتوں کے مسئلے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی در پردہ ایک ہے۔ حکومت پاناما کے فیصلے تک فوجی عدالتوں پر عملی اقدام نہیں کرے گی، شیخ رشید کا دعویٰ۔ پارک نہیں چھوڑے، گراؤنڈ نہیں چھوڑے، روڈ نہیں چھوڑے، ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں چھوڑے، کوئی خالی زمین اس شہر میں جو ان کو نظر آئی انہوں نے کوئی ایمینٹی پلاٹ نہیں چھوڑے، سب پہ انہوں نے قبضے کیے۔ پیپلز پارٹی اور MQM میں الزامات کی جنگ چھڑ گئی۔ متحدہ نے پارک اور نالے تک بیچ دیے، ہزاروں گھوست ملازمین بھرتی کیے۔ سعید غنی نے الزامات کی بارش کر دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو آج کی ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مزارات کے طفیل زندہ ہے۔ MQM نے بھی الزامات کی پٹاری کھول دی۔ ندی نالوں پر پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگے ہیں۔ بلڈنگ کنٹرول کو ڈاکو اڈا بنا دیا گیا۔ گجرا کے غیر قانونی ہائیڈرنٹس چل رہے ہیں۔ فیصل سبزواری کا جوابی وار۔ حیدرآباد کرپشن کے خزانے کا گڑھ بن گیا۔ محکمہ تعلیم کا سپرنٹینڈنٹ گرفتار۔ ملزم 28 کروڑ کی جائیداد کا مالک۔ 3 گاڑیاں، 4 کروڑ کے پرائز بانڈ، 8 کروڑ کے بینک اکاؤنٹس بھی پکڑے گئے۔ ملک کی دفاع کا ایک اور سنگ میل عبور۔ چینی ساختہ ایئر ڈیفنس سسٹم پاک فوج کا حصہ بن گیا۔ زمین سے فضا میں کسی بھی ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل۔ تقریب میں آرمی چیف جنرل باجوہ کی شرکت۔ کنٹرول لائن پر ایک بار پھر بھارتی فوج کی فائرنگ، 2 افراد زخمی،
पाक फौज का भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब। अवाम की सेहत से खेलने की इजाजत नहीं, पंजाब में गुटखा माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 29,000 किलो गुटखा जब्त, 43 गोदाम सील कर दिए गए। शुतुरमुर्ग का गोश्त ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के मरीजों के लिए निहायत मुफीद। लाहौर में 1500 रुपए फी किलो दस्तयाब, दुकान का इफ्तिताह कर दिया गया। लाल, हरे और नीले पीले रंग की बरसात, मुल्क भर में होली का त्योहार। हिंदू बरादरी खुशी से सरशार, नौजवानों के भंगड़े। अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों तुम नहीं चार, अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और इस्तेहसाली तबके और माशरती नाइंसाफियों के खिलाफ इनकलाबी शायर हबीब जालिब की आवाज आज भी तवाना। अस्सलाम वालेकुम, आज 9 बजे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे हुकूमत और फौज ने 15 मार्च से शुरू होने वाली कौमी मर्दमशुमारी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम कर लिए हैं। फोर्सेस के 2 लाख से जायद और सिविलियन इंतजामिया के 1 लाख से जायद एहलकार मुल्कगीर सर्वे करेंगे। मर्दमशुमारी नताइज की बुनियाद पर असम्बली नशिस्तों का नया तयन होगा। समाजी भलाई की कौमी मनसूबाबंदी और वसाइल की तकसीम भी इन्हीं नताइज की बुनियाद पर होगी। देखते हैं इस्लामाबाद से रिपोर्ट। हुकूमत की वज़ीर इत्तलात पाक फौज के तर्जुमान और इदारा शुमारियात के सरबराह ने मुश्तरका न्यूज ब्रीफिंग में बताया कि बुध से होने वाली कौमी मर्दमशुमारी 2 मराहिल में होगी। पहला मरहला 15 मार्च से 15 अप्रैल के दरमियान मुकम्मल होगा। 3 दिन में घर मकानात शुमार होंगे, 10 दिन में अफराद का शुमार होगा, 1 दिन में बेघर अफराद शुमार किए जाएंगे। दूसरा मरहला 25 अप्रैल को शुरू होकर 25 मई को खत्म होगा। 25 मई को कंप्लीट होगा सेंसस का प्रोसेस। तो इसके अंदर जो प्रोविजनल रिजल्ट्स हैं उनको शाया किया जाएगा कि मेल फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, ट्रांसजेंडर कितनी है, और अर्बन रूरल को शाया कर दिया जाएगा। मर्दमशुमारी में मुल्क को 1,68,000 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। हर ब्लॉक में सिविलियन और फौजी जाकर मालूमात लेंगे। मर्द और खवातीन के साथ ख्वाजा सरा भी शुमार होंगे। दोहरी शहरियत वालों, सिफारतकारों, मुहाजिरीन, माजूर अफराद और नकल मकानी करने वालों गर्ज सब का डाटा मुरतब होगा। अवाम की आगाही की मीडिया मुहिम भी चलाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हल्का बंदी है, जो NFC अवार्ड है, हेल्थ और एजुकेशन और सोशल सेक्टर की सर्विस प्रोविजंस हैं, वो भी एलोकेट सिर्फ जो होता है वो इसी मर्दमशुमारी और पॉपुलेशन काउंट के जरिए होता है। फौज का कहना है कि कबायली इलाकों में ऑपरेशन के ज्यादातर अवामी मुतासरीन बहाल हो चुके हैं। जो बाकी हैं उनका इंदराज भी होगा। जो बाहर रह गए हैं और वो कैंप के अंदर भी हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी उनके इलाके हिसाब से हुई तो इसी फार्म के तहत जो है उनकी पॉपुलेशन सेंसस में रिकॉर्ड आएगा। मर्दमशुमारी पर लागत का कुल तखमीना 18.5 अरब रुपए लगाया गया है। इसमें 1,18,000 सिविलियन और 2 लाख से जायद फोर्सेस के एहलकार मुतय्यन होंगे। फैसल रजा खान, आज न्यूज, इस्लामाबाद। पाक फौज ने कहा है कि कौमी मर्दमशुमारी में दुरुस्त मालूमात का हुसूल और मुतय्यन अमला की हिफाजत अहम तरीन जिम्मेदारी है। फौज का मजीद कहना है कि कानून शिकन अनासिर जो भी हुए उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। इंतजामात मुकम्मल है। मर्दमशुमारी में गलत मालूमात देना काबिल सजा जुर्म है। छठी कौमी मर्दमशुमारी के इंतजामात की न्यूज ब्रीफिंग में हुकूमती और फौजी तर्जुमान ने अवाम से अपील की है कि वो इस अमल को कौमी फरीजा समझकर ताउन करें। हर घर तक फौज का सिपाही जाए। अवाम जो भी हालात मशकूक समझे उसके बारे में फौरी आगाह करें। गलत मालूमात देना काबिल सजा जुर्म होगा। जब डाटा बताया जाएगा तो जो सिपाही होगा हमारा साथ, जो हर घर में जाके काम करेगा, उसका लिंक होगा नादरा के साथ। जो झूठ बोलेगा या गलत डाटा देगा तो उसको एक जुर्म सवर किया जाए। 50,000 रुपीज उसका जुर्माना है और 6 मंथ्स उसकी सजा है।
तर्जमान पाक फौज का कहना था सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल किए हैं। हर एक ब्लॉक से लेकर ऊपर की सतह तक निगरानी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। फौज की तो इस सिलसिले में तैयारी है ही है, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी सारी इसमें डबटेल की गई हैं। अगर अवाम अपनी आंखें खुली रखेगी तो इस प्रोसेस के दौरान अगर वो समझते हैं कि कोई ऐसी बात है जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शेयर करना ज़रूरी है तो प्लीज़ डू दैट। मीडिया ब्रीफिंग में बताया गया कि मरदमशुमारी में घरों पर सब्ज रंग से निशान लगाया जाएगा। जो जगह शुमार नजर न आए उसके बारे में फोन हेल्पलाइन 0800 57 574 पर इतला दी जा सकती है। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मरदमशुमारी के लिए मौसर अंदाज से हिकमत अमली तय की जाए। लोगों की आसानी के लिए शनाख्ती कार्ड्स की शर्त पर नरमी रखी जाए। शनाख्ती कार्ड ना होने की सूरत में दीगर शवाहिद काबिल कबूल समझे जाएं। मरदमशुमारी को बेहतर बनाने के लिए वजीर आला सिंध ने वफाकी वजीर इसहाक डार को खत लिख दिया। खत में वजीर आला सिंध ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मरदमशुमारी इतनी बेहतर तरीके से हो कि हर शहरी को गिना जा सके। मरदमशुमारी को आवाम के लिए काबिल कबूल बनाने के लिए इक़दामात किए जाएं। डेटा रोजाना की बुनियाद पर जमा किया जाए। डेटा को वेबसाइट के साथ जिला दफातर में भी आवेज़ा किया जाए। वजीर आला ने कहा कि शनाख्ती कार्ड की शर्त पर नरमी बरती जाए और शनाख्ती कार्ड ना होने की सूरत में दीगर शवाहिद को काबिल कबूल समझा जाए। पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान नोक झोंक का सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। आज भी पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा पर तनकीद के तीर बरसाती रही। सईद गनी कहते हैं कि एमकेएम वालों का ये पुराना हरबा है, इतना शोर मचाओ कि सच लगने लगे। जवाब में एमकेएम के फैसल सब्जवारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी बताए कि उसने कराची के लिए क्या किया। ये शहर कोई लूट का माल नहीं, इस मसले पर अब अदालत जाएंगे। एमकेएम का ये पुराना एक हरबा रहा है कि वो शोर इतना मचाते हैं हर चीज पे कि लोग जो हैं उसको सच समझना शुरू कर दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज की है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मज़ारात के तुफैल जिंदा है। कराची में तरक्याती कामों और सफाई का मसला क्या बना? पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान जंग छिड़ गई। कई रोज से जारी मामूली नोकझोंक शिद्दत इख्तियार कर गई है। पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची के इल्जामात का दो टोक जवाब दिया। सईद गनी कहते हैं कि मेयर साहब तनकीद छोड़े और काम पर तवज्जो दें। अपनी जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट पे डालना ये नाअहली की आला तरीन मिसाल है और मैं समझता हूँ वसीम अख्तर साहब को पहले जो जिम्मेदारियां उनके पास है उस पर वो काम करें, फिर उसके बाद जो आगे के काम है उस पर बात करें। जवाब में एमकेएम भी बरस पड़ी। फैसल सब्जवारी बोले कि क्या कराची लूट का माल है जो चाहे हड़प ले। आप 3 रोज का आपने कहा, आप 3 साल क्या 9 साल में कचरा नहीं उठा सके। कराची तो सौतेला है आपके लिए। जब ये आप गैंगस्टर्स की कभी सरपरस्ती करते हैं, कभी बल्दियाती हुकूमत के पैसे रोकते हैं, कभी इख्तियारात पे डाका मार के आईन की खिलाफ वर्जी करते हैं, आईन शिकनी के मुर्तकिब होते हैं। पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया कि शहर को लूटने वाले खुद एमक्यूएम है। अपने दौर में ना शहर के रफाई प्लॉट्स छोड़े, ना मैदान और ना ही नाले बख्शे। 16,000 तादाद थी 2005 में और जब इन्होंने छोड़ी है तो ये तकरीबन 60,000 के करीब थी। तनख्वाहें लेते हैं बल्दियाती इदारों की, नौकरियां करते हैं एमक्यूएम की। जरा ये बताएं ना कि इन गोश्त मुलाजिमिन के खिलाफ उन्होंने क्या किया है। कोई खाली जमीन इस शहर में जो इनको नजर आई, इन्होंने कोई एम्यूनिटी प्लॉट नहीं छोड़े, सब पे इन्होंने कब्जे किए। नाले इन्होंने बेचे हैं। ये हमें कहते हैं कि जो गुजर नाला पे इंक्रोचमेंट थी, हमने तो हटाई है। कराई किसने थी इंक्रोचमेंट? सारे इनके दौर में हुई है। एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी का बयान रद्द कर दिया। कहा दूसरों पर उंगली उठाने वालों के इरादे क्या हैं खूब जानते हैं। हमें इल्म है आपकी पार्टनरशिप्स का। हमें इल्म है कि कैसे आपने कहीं चीनियों को ठेके दिए और कहां बागे इब्ने कासिम पर डाका मारने कराची वालों के हक पे बहरिया टाउन को देकर आप जा रहे हैं। यह हम होने नहीं देंगे। अदालत में भी जाएंगे, बागे इब्ने कासिम के बाहर भी जाकर खड़े होंगे। लूट का माल नहीं है कराची शहर। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की बहस और तकरार एक तरफ और शहर के तरक्याती काम और सफाई के निजाम दूसरी तरफ। शहरी चाहते हैं कि बयानबाजी और लड़ाई खत्म करके काम पर तवज्जो दी जाए। अभी आपको अहम खबर दें कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल जफर झगड़ा का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने सिर्फ धरना सियासत को तरजीह दी। पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट मिला लेकिन कुछ नहीं किया।
कोशिश करेंगे इंतखाबात में सूबे में सियासी इत्तेहाद बनाएं। वो प्रोग्राम रूबरू में मेजबान शौकत पराचा से गुफ्तगू कर रहे थे। बदकिस्मती से बजाय इसके कि वो यहाँ पर बैठ के इस सूबे में जहाँ मैंडेट मिला था इसमें अपनी भरपूर कारकर्दगी दिखाते और यहाँ के अवाम की मज़ीद वो कॉन्फिडेंस गेन करते, तो ये ट्रैवल करता पूरे मुल्क में। लेकिन उन्होंने इसकी बजाय तरजीह दी धरना पॉलिटिक्स को और ऐसी बातें जिससे कि हुकूमत या सूबे के लिए कुछ नहीं कर सके, बल्कि वो पार्टी सियासत के उसमें घिरे रहे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि जावेद लतीफ ने मुराद सईद के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इंतजार था कि नवाज शरीफ मुराद सईद से माफ़ी मांगे और जावेद लतीफ को असम्बली से निकालें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जावेद लतीफ के खिलाफ एक्शन ना लेने का मतलब उनकी पुष्ट पनाही है। जिस तरह की उसने उनके घर वालों की ख्वातीन के ऊपर जुबान इस्तेमाल की, मैं नवाज शरीफ आपसे इंतजार कर रहा हूं कि कब अब माफी मांगेंगे मुराद सईद से। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब आप जावेद लतीफ जैसे एमएनए को असेंबली से बाहर फेंकेंगे। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप वैसे तो बड़ी मासूम और मजलूम शक्ल बना लेते हैं, लेकिन अगर आपने इसके खिलाफ एक्शन ना लिया, इसका मतलब आप खुद पीछे हैं इसके। मेरे पार्टी का कोई एमएनए इस तरह की मीडिया पे आके आवाज और इस तरह की बात किसी के ऊपर करे, किसी के घर की ख्वातीन के ऊपर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं उसको तहरीक इंसाफ से बाहर निकालूंगा। उधर वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई तर्जुमान नईमुल हक रेलू कट्टा हैं, जबकि फटीचर का किरदार चौधरी सरवर अदा कर रहे हैं। 2018 के इंतखाबात के बाद इमरान खान भी रेलू कट्टा हो जाएंगे। इनके तर्जुमान और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हैं शायद नईमुल हक साहब। यानी अगर आप देखा जाए तो रेलू कट्टे का लफ्ज़ उनके ऊपर बिल्कुल पूरा फिट बैठता है। उनकी आवाज़ देखें, उनकी बॉडी फिजीक देखें, और इसी तरह से जो है अगर फटीचर किसी को कहना है तो जो चौधरी सरवर साहब हमारे गए हैं यहाँ पंजाब से, साबिक गवर्नर, इस वक्त वो फटीचर का जो है ना वो रोल जो है वो पीटीआई में जो है वो अदा कर रहे हैं। तो मामला ये है कि ये सिर्फ अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए लोगों के खिलाफ इस किस्म के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और ये मैं आज कह दूं कि 2018 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की सियासत में नंबर 1 जो रेलू कटा होगा वो इमरान खान होगा। अभी आपको एक अहम खबर दें, भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज ने चिरी कोट सेक्टर में आबादी को निशाना बनाया। फैसल रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट लेते हैं। फैसल, भारतीय फौज ने फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है? जी बिल्कुल, भारतीय फौज की जानिब से जो है वो कंट्रोल लाइन की मुसलसल जो है वो खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक भारतीय फौज ने एक बार फिर कंट्रोल लाइन पर संगीन खिलाफ वर्जी की है। 2003 के पाक भारत फायरबंदी मुआहदे की, और चिरी कोट सेक्टर है जहां पर सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया है। पाक फौज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया है। ताहम चाफार गांव में भारतीय फायरिंग के नतीजे में 60 साल मुअम्मर शख्स और 15 साल बच्ची जो है वो जख्मी हुई है, जिनको दोनों जख्मियों को जो है फौरी तौर पर अब्बासपुर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ठीक है, भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। फैसल रजा, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। लाहौर का रुख करेंगे, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन हुल्लड़बाजी का शिकार हो गया। शादी हॉल का मालिक हॉल बंद करके गायब हो गया, मजबूरन कन्वेंशन सड़क पर करना पड़ा। पीटीआई रहनुमाओं ने बदनज़मी का इल्जाम हुकूमत पर डाल दिया। मजीद बताएंगे बलोच। पीटीआई टाउनशिप की मकामी क़यादत ने एक शादी हॉल में वर्कर्स कन्वेंशन और मेहमानों के लिए नाश्ते का एहतमाम किया था, जिसमें शाह महमूद कुरैशी को बतौर मेहमान खसूसी मदऊ किया गया था। कन्वेंशन उस वक्त शदीद बदनज़मी का शिकार हो गया जब शादी हॉल का मालिक हॉल बंद करके रफू चक्कर हो गया। पीटीआई कारकुनों ने वाक़े की जिम्मेदारी लीगी कारकुनों पर डाली और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी।
पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद रशीद, शफकत महमूद, हामिद खान और दीगर पीटीआई रहनुमाओं ने सड़क ब्लॉक करके कन्वेंशन सड़क पर ही किया। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि शादी हाल का मालिक ज़हीम कादरी के गुंडों के धमकाने पर फरार हुआ है। ज़हीम कादरी को शर्म आनी चाहिए। अब वो वजीर हो गया है, जो उसने शाह से बढ़कर शाह की वफादारी वो दिखाता रहा, उसके बदले में उसे वजारत मिल गई है। पीटीआई रहनुमाओं का मजीद कहना था कि वो हुकूमती हथकंडों से घबराने वाले नहीं। पनामा लीक्स का फैसला करीब है, जिसकी वजह से हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। ये एक्सपोज हो गए हैं। पनामा की वजह से सारे पाकिस्तान को पता लग गया है कि नवाज शरीफ ने और ये नून लीग वालों ने जो लूट मार की है। नून लीग की कल गुंडागर्दी यहाँ पर हुई है, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। ये बड़े अफसोसनाक बात है। वर्कर्स से खिताब में पीटीआई रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग को टीचर लीग का खिताब भी दिया और पुलिस से जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा किया। सईद बलोच, आज न्यूज़, लाहौर। और इसी वाक़े पर तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त नहीं ली। हॉल की बंदिश तहरीक इंसाफ का अंदरूनी मामला है, नून लीग का कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई कारकुन कसूरवार पाया गया तो कार्रवाई होगी। वर्कर्स कन्वेंशन करना है, आप गवर्नमेंट से इजाजत नहीं लेंगे वर्कर्स कन्वेंशन करने के लिए। इस वक्त छोड़ दें कि नून लीग की पॉलिटिकल पार्टी है, बट एक गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट से परमिशन लिए बगैर आप एक पब्लिक प्रोसेशन करना चाह रहे हैं, कोई इज्तिमा करना चाह रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी सिचुएशन है और शहर के जो हालात हैं वो भी इनको पता है, तो अनकंसर्न्ड होकर कैसे अलाउ कर दें किसी जगह पर इज्तिमा जिसकी इजाजत नहीं होगी। तो ये पहले वर्कर्स कन्वेंशन करने के लिए परमिशन सीख करें। अगर ये कोई मुतशद्दिदाना रवैया वहाँ पर किसी सियासी कार किया है तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये गलत बात है। ये क्यों उन्होंने इस तरह किया? अगर वो पीटीआई की को परमिशन ली हुई वर्कर्स उनकी कोई कन्वेंशन थी और वहाँ पर अगर कोई हमारी जमात के कारकुन वहाँ पर गए हैं तो इस तरह से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की, जिन्होंने कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान और ऑपरेशन रद्दुल फसाद का ये मतलब नहीं कि मुल्क में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी जाए। पनामा केस में करप्शन की हार और इंसाफ की जीत के लिए कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। अदालत इतने पालेवान है कि भी बड़े लोगों पर हाथ डाले। लाहौर में एक तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान और ऑपरेशन रद्दुल फसाद को बुनियाद बनाकर सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी का मतलब आमरीत को फरोग देना है। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे में असल रुकावट हुकूमती पॉलिसियां हैं कि दहशत गर्दी के खात्मे में असल रुकावट पाकिस्तान की हुकूमत के गलत पॉलिसियां हैं, अमरीका के ताबे पॉलिसियां हैं, डॉलर के लालच में बनाए हुए पॉलिसियां हैं। सिराजुल हक का कहना था कि अगर हुकूमत चाहती है कि लोग कानून को हाथ में ना लें तो करप्शन के खात्मे के लिए इकदाम करें। करप्ट हुक्मरानों के एहतसाब के लिए पनामा केस के फैसले का अवाम को शिद्दत से इंतजार है कि अगर बड़े लोगों पर हाथ डाला गया तो 20 करोड़ अवाम जिस करप्शन से परेशान है उसका नाम निशान खत्म हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मुल्क में बंदूक के जरिए नहीं, सिर्फ वोट के जरिए ही इंकलाब आ सकता है। मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल का दारोमदार आइंदा आम इंतखाबात पर है। शेख रशीद अहमद ने पनामा स्कैंडल के मुकदमे से मुतालिक नया सियासी मंजरनामा पेश कर दिया। उनका दावा है कि फौजी अदालतों का मुस्तकबिल पनामा मुकदमे के फैसले से मुंसलिक है। देखते हैं इस्लामाबाद से तारिक खान की रिपोर्ट। शेख रशीद अहमद ने मारगला पहाड़ियों पर तफरीह की एक तकरीब में शिरकत की और मीडिया से सियासी गुफ्तगू भी कर डाली। उनका कहना था कि फौजी अदालतों की बहाली के मसले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दरपर्दा एक हैं। दहशत गर्दी के खात्मे की खातर इन अदालतों की बहाली भी जरूरी है, लेकिन दूसरी जानिब वाजिया सियासी मज़ाहमत भी मौजूद है। अगर पीपल्स पार्टी, MQM और फजलुर रहमान और बोर्ड नहीं होते, ये मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला बिल कानूनी आईनी पास नहीं हो सकता। फिर कोर्ट जाने या जिनके कोर्ट हैं वो जाने और हुकूमत जाने। उनका कहना था कि पनामा मुकदमा पर सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया, ये जो भी फैसला सुनाया वो इस पर अदालत के साथ होंगे। ताहम ये भी नजर आ रहा है कि हुकूमत पनामा का फैसला आने तक फौजी अदालतों की बहाली का अमली इकदाम नहीं करेगी। फौजी अदालतें उस वक्त तक ये नहीं बनाएंगे जब तक पनामा का फैसला नहीं आता। 10-15 दिनों में फैसला आ जाएगा और कानून और नून में से एक का जनाजा जरूर निकलेगा। शेख रशीद ने इम्कान जाहिर किया कि पनामा मुकदमे का फैसला 1-2 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। इलेक्शन हो या ना हो, रवां साल 2017 मुल्क की सियासत में बहुत अहम होगा। राना तारिक, आज न्यूज, इस्लामाबाद।
हैदराबाद में नैब इंतहाई फाल नजर आ रही है। आज भी कार्रवाई करके करोड़ों रुपए के गबन में मुलव्विस महकमा तालीम के सुपरिटेंडेंट बच्चू मिल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के घर से 28 करोड़ रुपए की जायदाद के दस्तावेजात बरामद हुए। नैब ने की हैदराबाद में एक और बड़ी कार्रवाई। इस बार हाथ लगा महकमा तालीम का सुपरिटेंडेंट बच्चू मल, जिसके पास से बरामद हुआ बेतहाशा माल। मुलजिम ने उगलना शुरू किया तो नैब ने गिनना। तर्जुमान नैब के मुताबिक मुलजिम के घर से 28 करोड़ रुपए की जायदाद के दस्तावेजात बरामद हुए। 4 करोड़ रुपए के प्राइस बॉन्ड्स और सेविंग सर्टिफिकेट्स भी मिले। मुलजिम और अहले खाना के बैंक अकाउंट्स में 8 करोड़ रुपए पड़े हैं। मिल्कियत में मीरपुर खास में मौजूद 80 लाख रुपए का फ्लैट्स और 25 लाख रुपए मालियत की 3 गाड़ियां भी शामिल हैं। बच्चू मल के खिलाफ नैब कोर्ट हैदराबाद में रेफरेंस जेर समात है। रेफरेंस में मुलजिम के साथ महकमा तालीम मीरपुर खास के दीगर 22 मुलाजमीन भी नामजद हैं। और तो और मुलजिम पर मुलाजमीन की तनख्वाहों के 9 करोड़ 70 लाख रुपए के खुर्द बुर्द का भी इल्जाम है। बच्चू मल ने जायदाद अहलिया, बच्चों और दीगर रिश्तेदारों के नाम पर खरीद रखी है। इतना ही नहीं, महकमा तालीम मीरपुर खास में होने वाली जाली भर्तियों का भी अहम किरदार यही बच्चू मल है। अपने साथियों की मदद से बच्चू मल जाली भर्ती होने वाले अफराद को मुलाजमत पर ज्वाइनिंग भी कराता था। नैब ने मजीद बताया कि मुलजिम ने रेफरेंस में गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत करा रखी थी। नैब ने इससे कबल 2 बड़ी कार्रवाइयां करके लूटा हुआ अरबों रुपया बरामद किया, जिनमें गुज़िश्ता हफ्ते पुलिस एहलकार बाप बेटा और साबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर मुश्ताक अहमद शामिल हैं। वेलकम बैक अगेन। अब आपको बताएं कि मरदमशुमारी में असातिज़ा की मसरूफियत के बायस कराची में मैट्रिक इम्तिहानात 2 मराहिल में होंगे। चेयरमैन कराची मैट्रिक बोर्ड सईदुद्दीन कहते हैं 28 मार्च से आर्ट्स और 15 अप्रैल से साइंस ग्रुप के इम्तिहानात होंगे। कराची मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन ने कहा कि मरदमशुमारी के बायस असातिज़ा मसरूफ हैं, जिसकी वजह से कराची में इम्तिहानात 2 मराहिल में होंगे। बोर्ड ने 28 मार्च से इम्तिहानात कराने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने सूबाई महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी की जानिब से मुकर्रर करदा 28 मार्च 2017 के मुताबिक सालाना इम्तहान कराने की तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। चेयरमैन ने कहा कि पहली बार मैट्रिक बोर्ड ने एडमिट कार्ड और डेट शीट की बरवक्त फराहमी के लिए 5 हब कायम किए हैं। मैट्रिक बोर्ड की तारीख में पहली मरतबा एडमिट कार्ड और डेट शीट की मुकर्ररा वक्त पे फराहमी के लिए 5 हब सेंटर बनाए गए हैं। सईदुद्दीन ने कहा कि जनरल और साइंस ग्रुप में इस साल 3,53,466 तलबा इम्तिहान देंगे। ये शरह गुज़िश्ता साल की निस्बत 5% ज्यादा है। दूसरी जानिब 2 मराहिल में इम्तिहानात के इनेकात पर तलबा परेशान नजर आते हैं। गवर्नमेंट वालों ने गलत करा कि साइंस और बायो का अलग अलग कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। तैयारी में हमें बहुत परेशानी होगी। शॉर्ट टाइम में इतना याद करना है और आगे डेट भी चेंज कर दी है इन्होंने और स्कूल भी शिफ्ट हो रहा है। बहुत मसला होगा हमें बहुत मसला होगा। पहले हमने तैयारी कर ली थी, अब 2 हिस्से में हो गया। गवर्नमेंट में बहुत वो हो गया, तभी इसलिए मसला होगा हमें बहुत। मैट्रिक के इम्तिहानात को 2 मरहलों में करने से तलबा के साथ साथ वालिदैन को भी मसाइल का सामना होगा। पंजाब फूड अथॉरिटी गुटखा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर लाहौर समेत 5 शहरों में गुटखे के 43 वेयर हाउसेज सील कर दिए गए। फूड अथॉरिटी ने इंसानी सेहत से खेलने वाले अनासिर के गिर्द घेरा मजीद तंग करते हुए गुटखा बेचने वाले माफिया के खिलाफ भी मुहिम का आगाज कर दिया है। फूड अथॉरिटी की टीमों ने लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और रावलपिंडी में गोदामों से 29,000 किलो गुटखा कब्जे में ले लिया है। ये मुस्तकिल मेरे तौरों पे होना चाहिए, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होती हैं, तो उसको जो है रोकथाम के लिए एक मुस्तकिल जो है ना पॉलिसी बनानी चाहिए। नई नस्ल के लिए और बुजुर्ग बूढ़ों के लिए तो ये जहर की मानंद है। ये बहुत अच्छा हुआ है गुटखा पकड़ा गया है। जहाँ पर ये पान शॉप पे और जहाँ पर ये फैक्ट्री है, ये डीलर है, जो सप्लाई करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इसका जो है ना खात्मा होना चाहिए। बिल्कुल। डीजी फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मैंगल के मुताबिक गुटखे की फरोख्त गैर कानूनी है। गुटखा कैंसर की बड़ी वजह है। इसकी फरोख्त मुकम्मल तौर पर